फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। फंक्शन एक पार्ट होता है आपका प्रोग्राम का, राइट? फंक्शन को बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंक्शन की डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे। क्रिएशन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, राइट? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? क्रिएशन ऑफ फंक्शन बॉडी। एंड नेक्स्ट पॉइंट में हम जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, राइट? ये 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए अपने फंक्शंस को बनाना होगा, राइट? अब देखिए, किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सपोज दैट कि मेरे को एक सिंपल फंक्शन बनाना है, तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है, दैट इज डेफ कीवर्ड, DEF, राइट? फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग. I am giving here my function, right? So this is my function name, and body will start from here after placing the colon sign, right? So this is your function name, and this is the parenthesis to identify this is actually function, and this is what, this is the keyword to create the function definition, right? So we will create a function using def keyword, right? Here you have to define the body of the function, right? Body of the function can be anything. Suppose that if I want to print an statement here, print, suppose this is my statement, hello world. Now we have completed 2 steps. First one is creation of the function definition, right? We have created the definition of the function. And next, what we have created? We have created the body of the function. Now, the third step is remain. If you don't call the function and you execute this program, so what happened? Program will be executed, but no output here because the calling of the function, right? You have not called the function. Function calling is very important part for any function, right? So we have to call the function by its name, right? My function, that is the function name, and this is how we can call our function with the same name. Right now, execute this program. Your statement or your output will be printed on your output screen. Is it clear? Yes, sir. Okay, this is very simple steps how we can create a simple function. This is user defined function. User can define any name by their choice, right? Now, So today's lesson is yes, function of Python. yes. I've Okay. already told you about this, what we have discussed, what we will discuss um, for the few minutes, right? So today's topic is functions in Python, user-defined function, right? We have 2 types of function in Python. The first one is module-based function, and the second one is user-defined function, right? So this is, we are discussing the user-defined function today, right? So this is how we create user-defined function.
Now we will discuss types of user defined function. There are 5 types of user defined function. First one is positional function, or you can say that positional argument. Second one is keyword argument, or you can say that keyword function, right? Next one is default argument. Next one is variable length, positional argument. And the next one is what? Variable length, keyword arguments. These types of function we will discuss in today's lecture, right? Let's we discuss first one, that is positional argument. मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग. सपोज दैट I want to calculate the sum of two integer number. तो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा, उसका मैं नाम रख लेता हूँ सम. ठीक है, ये सम आप कुछ भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, माई सम. ठीक है, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट? यूजर डिफाइंड नेम. अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको 2 पैरामीटर्स पास करने होंगे while creating the definition of function. जब आप क्रिएट करोगे डेफिनेशन तो आपको 2 पैरामीटर्स पास करने होंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, सम ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स. नाउ आई नो दैट हाउ मेनी पैरामीटर्स और हाउ मेनी वेरिएबल्स और हाउ मेनी वैल्यूज आई एम गोइंग टू पास हियर, राइट? मेरा क्वेश्चन क्या है? I want to calculate the sum of 2 integer numbers, right? So I have to pass 2 parameters while calling the. Sorry for inconvenience. Now screen is visible. Yes, sir. Okay. So यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. I want to calculate the sum of 2 integer numbers. Then how I know how many parameters I'm going to pass here, right? While calling the or while creating the definition of the function. Suppose मैंने एक नेम दे दिया my sum, right? To calculate the sum of 2 integer numbers. आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर्स पास करने हैं. जैसे सपोज दैट a मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया, सेकंड पैरामीटर मेरा b हो सकता है, ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हैं. अब यहाँ पर आपने एक सिंपल लॉजिक लगाया, प्रिंट, और इन दोनों वेरिएबल्स को यानी कि आपने क्या करा, 2 वैल्यूज को ऐड करा लिया, ठीक है? तो ये सिंपल लॉजिक था, सम ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स, राइट? अभी आपको क्या करना है, कॉलिंग के टाइम जब आप कॉल करोगे इसको बाय इट्स नेम, तो आपको यहाँ पर 2 वैल्यूज को पास करना होगा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं हम पोजिशनल पैरामीटर्स. मतलब जितने पैरामीटर्स हम यहाँ पर डेफिनेशन के टाइम पास कर रहे हैं, उतने ही हमें वैल्यूज को कॉलिंग के टाइम पास करना होगा. देखिए हमने क्रिएट की थी ना, डेफिनेशन को क्रिएट किया था. अब जब डेफिनेशन हमने क्रिएट की तो यहाँ पर हम 2 पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, a एंड b. तो कॉलिंग के टाइम भी हमें 2 वैल्यूज को पास करना मैंडेटरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टू पास only up to the variable values
while creating the function, ठीक है, जिस टाइम आपने फंक्शन को पास किया था उस टाइम ही आपको क्या करना होगा, जितने पैरामीटर्स आपने पास किए थे उसी के करस्पॉन्डेंस आपको वैल्यूज को पास करना होगा। तो यहाँ पर जो 5 है वो वेरिएबल ए में जाएगा, मैप हो जाएगा, और 6 वैल्यू जो है वो वेरिएबल बी में पास हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब अगर मान लीजिए इसकी वैल्यूज को या इसके आप पोजीशन को चेंज करते हो, ठीक है, 6 की जगह 5 करते हो, 5 की जगह पर 6 करते हो, तो क्या होगा कि पोजीशन जो होगा ये ए को कहाँ क्या जाएगा, अगर आप 6 की जगह पर 5 लिखते हो, 5 की जगह पर 6, तो पोजीशन होने की वजह से 6 जाएगा ए में और 5 जाएगा बी में। मतलब हम इसको इसलिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं कि जो वैल्यू हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वही वैल्यू पैरामीटर ए में स्टोर की जाएगी। सेम यहाँ से जो सेकंड वैल्यू पास कर रहे हैं वो सेकंड पैरामीटर में स्टोर की जाएगी। मतलब जितनी वैल्यूज हमें यहाँ से पास कर रहे हैं उतने ही हमें पैरामीटर्स क्रिएशन के टाइम क्या करना है, पास करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। तो 5 + 6, what is the output? The output will be 11. Suppose you are passing only two parameters while creating the definition of function, and you are passing more than two values while calling the function, right? Suppose that मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू और ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, यू विल गेट एन एरर। क्यों? क्योंकि ये पोजीशनड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 4 किस में जाएगा, ए में, और 5 किस में जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, बी में। तो ये 6 कहाँ पर जाएगा, 6 के लिए वो देखेगा, मैपिंग करेगा, और मैपिंग यहाँ पर करेगा। तो उसमें आपने क्रिएशन जब किया था फंक्शन, तो वहां पर जब आपने फंक्शन को क्रिएट किया तो उसमें जो पैरामीटर पास किए थे, 2 पैरामीटर पास किए थे। तो यहाँ पर आप कितने पास कर रहे हो, वैल्यूज को 3। तो इसके करस्पॉन्डेंस ही आपको क्या करनी होगी, वैल्यूज को पास करनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो आई विल गेट एन एरर। Look at this. What is error? My sum, this is this function name, takes two positional arguments but 3 were given. This is very clear message to you कि यहाँ पर क्या है, फंक्शन क्रिएशन के टाइम आपने क्या करा, 2 पैरामीटर्स पास करे और आप कॉलिंग के टाइम 3 वैल्यूज पास कर रहे हो। तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा है, ये टाइप एरर हो रहा है, ठीक है। दिस इज द टाइप एरर, टाइप ऑफ एरर, राइट। क्लियर है? तो ये कौन सा एरर है, टाइप एरर कहलाता है। क्लियर? अब सपोज दैट कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अब कोई एक वैल्यू पास कर रही है, तब भी आपको क्या होगा, यहाँ पर एरर जनरेट होगी, क्योंकि हमें उतने ही पैरामीटर, उतने ही वैल्यूज को पास करना है जितने पैरामीटर्स हमने क्रिएशन के टाइम पास किए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर एक आपको मिलेगा, क्या मिली एरर, सेम एरर मिली, टाइप एरर। क्या मिला, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दैट इज बी। क्योंकि ए में क्या आ गया, 4, अब वो बी को सर्च कर रहा है, बी के लिए वैल्यू को सर्च कर रहा है। तो यहाँ पर उसने एक क्लियर मैसेज दिया, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दैट इज बी। बी के लिए आपने वैल्यू को पास नहीं किया है, तो दिस इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Any confusion regarding this function? No, sir. पर सर आपने जो बोला था कॉलिंग का, तो कॉलिंग इज लाइक गिविंग द वैल्यू टू द वेरिएबल और व्हाट? Yes, you are passing values to the parameters. This is Okay. parameters. These are the parameters which hold something, right? Okay. What these are holding, this is this value, right? So here you can see that हमें क्या करना है, जितने हम पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं उतने ही हमें वैल्यूज को भी यहाँ पर पास करना पड़ रहा है। अगर हम उससे एक ज्यादा करते हैं तब हमें एरर मिलेगी, अगर हम उससे एक कम पास कर रहे हैं तब क्या मिलेगी, हमें एरर मिलेगी, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या बोला है इसको, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मतलब हर तो ही एक, करेंगे। जी, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, मतलब हमें यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि हाउ मेनी वैल्यूज वी आर गोइंग टू पास।
while calling the function, नहीं right? सर, इसमें n नंबर ऑफ वैल्यू हम कर सकते हैं बहुत सारे। हाँ कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक सच टाइप ऑफ फंक्शन, राइट? अभी देखेंगे आगे नेक्स्ट एग्जांपल, राइट? अभी ये आपका पोजिशनल आर्गुमेंट है। सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता है कि कितने आर्गुमेंट्स आप पास करने जा रहे हो, तब आपको पोजिशनल आर्गुमेंट बनाना होगा, यानी कि पोजिशनल फंक्शन बनाना होगा, ठीक है? अब कीवर्ड क्या होगा? सपोज दैट मेरे पास क्या है कि मेरे पास सेम पैरामीटर्स है। आप यहाँ पर कीवर्ड की पास कर सकते हो, मतलब वैल्यू के साथ उसकी की पास कर सकते हो। सपोज दैट अगर मुझे इसका सीक्वेंस याद नहीं रखना है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज दैट b इज इक्वल 5, राइट, एंड a इज इक्वल 6, तो मेरा आंसर सेम आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर मैपिंग कर दी। ये मैंने क्या करा, while giving the value, right, I'm passing the key, right? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, की पास कर रहा हूँ इसकी वैल्यू के लिए, मतलब मैं उसको बता रहा हूँ, यहीं पर मैंने मैप कर दिया, कॉलिंग के टाइम ही मैप कर दिया। मुझे पता है ये क्या है, पोजिशनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है? मतलब आप क्या कह रहे हो, अगर हम यहाँ पर ऐसे करके देते हैं, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर कितने पैरामीटर्स लिए, यहाँ पर 2 पैरामीटर्स लिए। अब यहाँ पर उन वैल्यू के साथ जो वैल्यू हमें पास करना है, उनको हमने क्या कर दिया, मैप करा दिया विद की। ये इस टाइम पर क्या बन जाएंगी, वाइल कॉलिंग हमारे पास ये जो पैरामीटर्स बन जाएंगी, ये उसकी कीज बन जाएंगी, ठीक है? तो बी में क्या चला जाएगा, 5। इसमें आपको क्या मिला, सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट अगर आपको मान लीजिए 5 बी में स्टोर कराना है, ठीक है, और 6 मुझे ए में स्टोर कराना है, तो मुझे कुछ इस तरीके से पास करना होगा, 6 और 5। बट अगर मुझे इसकी मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, 6 एंड 5, 5 एंड 6, राइट, तो मुझे कराना है यहाँ पर बी में 5, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये 5 जो जाएगा ये ए में जाएगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के सिचुएशन के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर की पास कर रहे हो, तो आपको सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट बी में आपको क्या करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पर कितने पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो। सपोज दैट बी में मुझे चाहिए था 10, राइट, और ए में चाहिए था मुझे 20, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसको शफल करा सकता हूँ, मैं इसकी जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, बट क्या है कि मुझे की पास करना होगा उस केस में, ठीक है? तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी में जाएगी 10 और ए में जाएगी 20, राइट? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 30, राइट? आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी। आप एक मैसेज प्रिंट करा सकते हो, वैल्यू ऑफ ए, राइट? इतना करने के बाद अब आपने यहाँ पर भी कर लिया, वैल्यू ऑफ बी, राइट, ये आपने करा दिया। और अब देखिए आपको यहाँ क्या, क्या मिल जाएगा, ए में हमने क्या स्टोर कराया था 20, और बी में क्या स्टोर कराया था 10, तो वही वैल्यू सेम आपको मिल जा रही है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इज इट क्लियर? Is it clear to you? Yes sir. Okay. अब हम क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पर एक और की लेता हूँ, दैट इज सी, ठीक है? तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, ऐसे केस में हमारे पास होगा कि इट विल जनरेट एन एरर। क्यों? क्योंकि ये सी जो की है, ये सर्च करेगा कि आपने जब क्रिएट किया था फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन को क्रिएट किया था, तो वहां पर आपने ये पैरामीटर पास किया या नहीं किया। तो ऐसे में आपको क्या करोगे, आपके पास एक एरर मिलेगी, सेम एरर, टाइप एरर, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड। देखिए क्या मिला है इस पर, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब मैपिंग करा रहे हो, कीज आपने नहीं दी है while creating the function,
और आप मूड इन इट्स लिमिट क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। आपने यहाँ पर कितनी दे रखी थी, 2 कीज दे रखी है। मैपिंग भी आप 2 कीज करा रहे हो, बट आप कॉलिंग के टाइम 3 कीज पास कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये सर्च करेगा ना ये की कहाँ से आ रही है, तो उसके करस्पॉन्डेंस उस वैल्यू को सेंड करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ पर एक की भी पास नहीं कर सकते, मतलब हमें मैपिंग करनी है। ठीक है, कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है, इसे बोला गया है कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ये क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट, इसे बोला गया है कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। यानी कि जितनी कीवर्ड आप पास कर रहे हो, सॉरी जितनी पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो उसकी करस्पॉन्डेंस आपको कीज भी पास करनी होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now let's move to the next type of function, that is default argument. Suppose that कि यहाँ पर मेरे को क्या है, 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू पास की 10, ठीक, बट मैं एक ही वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उस केस में क्या करना होगा, b को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना होगा। ठीक है, जैसे b इज इक्वल 50। इसका क्या मतलब है, व्हेन वी डोंट पास वैल्यू ऑफ b, राइट, तो क्या होगा यहाँ पर कि जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है ये रेफरेंस की जाएगी, और ये क्या करेगा, 10 में तो एक जो करा देगा वो 10 को a में स्टोर करा देगा, और b में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो काम करेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सपोज दैट अगर पास नहीं करते हो, जैसे मैंने 10 पास किया तो 10 कहाँ जाएगा, ए में, बट मैं कोई दूसरी वैल्यू को पास नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 2 पैरामीटर्स और 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 2 वैल्यूज पास करनी होगी। बट इन केस अगर मैं पास नहीं करता यहाँ पर, तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी ये वर्क करेगी। ठीक है, एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, राइट, क्या करेगी, 10 में 10 को स्टोर करा देगी ए में, और बी की वैल्यू डिफॉल्ट वर्क करेगी, तो यू विल गेट 50, 10 प्लस 50 दैट इज 60। इज इट क्लियर? इसे बोलते हैं हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज वेरी नहीं सर, सिंपल। समझ नहीं आया। हमने कॉलिंग किया 10, जी जबकि ए का वैल्यू हमने नहीं दिया, बी का वैल्यू 50 दिया। जी जी, तो ऐसे तो में क्या बी का होगा, वैल्यू आप बोलोगे सेम रहेगा, जी और जी, ए का ए 10 में रहेगा, मतलब 10 जो स्टोर भी करा हम दी कॉलिंग जाएगी। करें वो आ जाएगा। जी 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 जी, तो इसे बोलते हैं हम ओके। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सारा खेल इसी का है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर दिया है एक पैरामीटर में। अगर हम पास भी नहीं करते, सपोज दैट आई एम नॉट पासिंग वैल्यू हियर, राइट, तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये जाएगी हमारी ए में, और जो सेकंड वैल्यू है वो डिफॉल्ट एज अ डिफॉल्ट वर्क करेगी। वैल्यू पास नहीं कर रहे हो बट एज अ डिफॉल्ट वर्क कर रही है ऑन सी, जो हमने सेट करा दी है डिफॉल्ट, दैट इज 50। तो यहाँ से आपको क्या मिला आंसर, 10 प्लस 50। अब suppose that if I am passing same values corresponding, passing the parameters while creation of the function, suppose that 10 and 15, then what will be the output here? 75। 75. यस 75. Are you sure about this? सर, मुझे पता तो नहीं है, या तो 75 आएगा, या हाँ, तो in 60 आएगा। in that case, क्या होगा कि आप पास कर रहे हो 2 values corresponding their parameters, right? तो ये जो 10 होगी, ये 10 जो वैल्यू होगी वो स्टोर कर दी जाएगी ए में, और 15 जो है यहाँ पर क्या रहेगी, इसकी जो पावर रहेगी वो प्रायर रहेगी। ठीक है, मतलब इसकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो बिगर हायर नंबर, रहेगी। हाँ। तो ये जो आपका डिफॉल्ट वैल्यू है इसको रिप्लेस करके क्या कर देगा, जो आप यहाँ से वैल्यू को पास कर रहे हो बी में वो स्टोर करा दी जाएगी। 15 पास कराई ना यहाँ पर, तो 15 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू वेरिएबल b, राइट। अच्छा, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 25।
25, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 25। इन दैट case when you are not passing the values corresponding to the parameters which you are passing while creation of the function, right? So default value of a parameter will work as a default, right? So यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए ये पास नहीं करोगे तो आपको अब जो प्रायोरिटी होगी वो हायर हो जाएगी हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर की, यानी कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट की। इज इट क्लियर? then you will जी, get the proper answer, that is 60। 60. Okay, is it clear? यस सर, यस सर, Okay, वेरी मच क्लियर। तीनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गए, तीनों टाइप्स ऑफ जी फंक्शन। ओके, जी नेक्स्ट सर। मूव करते हैं हम वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए, when we don't know how many values we are going to pass while calling the function, right? While calling the function we don't know how many values we are going to pass, राइट? मान लीजिए एक कर रहे हैं पास, दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, या मल्टीपल वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, बट यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हाउ मेनी वैल्यूज यू आर गोना पास, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा ऐसे में, अगर हमने पैरामीटर्स नहीं दिए व्हाइल क्रिएशन ऑफ द फंक्शन, राइट, तो वो तो मैपिंग ले रहा है, वो मैप कर रहा है वैल्यूज को। तो वैल्यूज वहां पर हर बार आपको क्या करना है, जितनी पैरामीटर्स आप क्रिएशन के टाइम दे रहे हो उतनी ही उसके करस्पॉन्डेंस आपको वैल्यू देनी है। तो तब तो आपका वो फंक्शन वर्क कर जाएगा। बट अगर आप वैल्यू को पास नहीं कर रहे हो जितने पैरामीटर्स आपने दे दिए, या फिर वैल्यूज ज्यादा पास कर दी और पैरामीटर्स आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं दिए, तो वहां पर आपको हर बार क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमें वैल्यूज ही नहीं पता है कि कितनी वैल्यूज पास कर रहे हैं, कितने इनपुट्स आने वाले हैं फ्रॉम यूजर, एक्चुअली वी डोंट नो, तो हमें क्या करना होगा, आपको बनानी होगी आर्बिट्रेरी, ठीक है? इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेरी। क्या बनाते हैं हम, द वर्ड इज, दैट इज टेक्निकल वर्ड, आर्बिट्रेरी, ठीक है? आर्बिट्रेरी ये वर्ड है, ये वर्ड को आप थोड़ा लर्न कर लीजिए। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मीन्स होता है दिस इज वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर? जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखते चलिए और बहुत ध्यान से उसको समझते चलिए, ठीक है? आर्बिट्रेरी का मीन्स होता है वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है? अब हमें क्या करना है, सपोज हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यूज को पास करना है, तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। सपोज दैट वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, सपोज a b c, right? This is a single variable, single type of variable, right? I'm not giving the comma separator in between the variables, so this variable will be treated as a single one, right? So now this is a variable, or you can pass like that. Okay, is it clear? Yes or no? यस सर, Okay, यस सर। आप तो yes और no बोलते रहिए, इससे मुझे लगेगा कि वो हाँ सर भाई आप, म्यूट रहता है ना, तो उसको ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है। चले आप यस और नो बोलते रहा करिए और अनम्यूट अभी मत कीजिए, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको नहीं पता है कि फॉर दिस कौन सा हम फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसमें माइनर सा डिफरेंस है विच बिकम्स मेजर, राइट? तो यहाँ पर जो माइनर सा डिफरेंस है उसको हमें देखना है इसमें और इसमें, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। अभी आपने क्या किया, सिंगल वेरिएबल ले सकते हो या वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट put the asterisk sign before the variable name, put the asterisk sign to make it variable length positional argument. This will reference for all the values
which are passing while calling the function, right? Suppose I don't know how many values I'm going to pass here. Suppose 5, 6, and so on, right? These are the values which I am passing here. Now I'll catch all the values here, right? So this is right. Now all the values were written in the tuple, right? तो ये से क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। हमें कुछ नहीं करना होता है, एस्ट्रिक साइन लगा देना होता है बिफोर द वेरिएबल नेम। अब ये जो वेरिएबल लेंथ हमने बनाया है, तो ये एस्ट्रिक क्या कर रहा है, जितनी भी हम यहाँ पर वैल्यू को पास कर रहे हैं उनको रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यूज के लिए ये एस्ट्रिक साइन क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। आप यहाँ पर कैच कर सकते हो सारी की सारी वैल्यूज, आप क्या कर सकते हो, कैच कर रहे हो इन वेरिएबल ए, राइट। जो जितनी भी वैल्यूज आप यहाँ से पास करोगे वो कहाँ पर आएंगी, आपकी टपल में रिटर्न कर दी जाएंगी। सपोज यू वांट ओनली द फर्स्ट वैल्यू, यू वांट टू कैच ओनली द फर्स्ट वैल्यू, तो कैसे करोगे, यहाँ पर दिस मेथड सपोर्ट्स इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट एलिमेंट, तो आपको सिंपल जैसे हम टपल या लिस्ट में जैसे भी इंडेक्सिंग करते थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इंडेक्सिंग करनी है। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज एट 0 पोजीशन and the second element is at what position, is at what position? हाँ जी सर। Second element is at One. what position? 1. Now One. according to this statement, what will be the output? 15. 15, right? You will get 15. You can also do indexing by this method. Okay, so this is variable length positional argument. Clear? Yes. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता नहीं था कि कितनी वैल्यूज पास करें। अब हम कितनी भी वैल्यूज पास कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहो एक वैल्यू पास करना कर सकते हो, 2 वैल्यूज पास करना कर सकते हो, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज एंड मल्टीपल वैल्यूज आपको क्या करना है, पास करना है, कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। वहां पर हमें क्या करना पड़ रहा था, वहां पे पैरामीटर्स भी पास करने पड़ रहे थे और वो पैरामीटर्स मैप हो रहे थे, वैल्यू को मैप कर रहे थे, वहां मैपिंग हो रही थी, इस वजह से हम बोल रहे थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस करके हमने वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बना दिया। मतलब अब जो ये साइन हमने लगाया है, इसका मतलब होता है कि जो भी रेफरेंस करेगा, ये वैल्यू को रेफरेंस करेगा, तो ये सारी वैल्यू के लिए, सारी जितनी भी वैल्यूज यहाँ से पास कर रहे हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे ही आप एक ही वेरिएबल में सारी की सारी वैल्यूज को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडेक्सिंग, ठीक है। तो आपने जैसे देखा कि हमने इंडेक्स करके सम ऑफ 2 इंटीजर वैल्यूज कर लिया, और बाकी फर्दर वैल्यूज को आप यहाँ से, अब आपको वो चीज याद करने की नहीं है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट आपको यहाँ पर देख लो कि आपको कौन सी वैल्यू को चाहिए, कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फर्दर वैल्यूज को, फर्दर पैरामीटर्स को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो अपने पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। आपको कॉलिंग के टाइम कितनी भी वैल्यूज पास कर सकते हो, ठीक, और उसको फर्दर प्रोग्राम में, अपने होल प्रोग्राम में कहीं पर भी आप उसको यूज कर सकते हो। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए 2 वैल्यूज को क्या कर रहे हो, आप 2 वैल्यूज को कुछ काम में ले रहे हो, बाकी सारी वैल्यूज से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप उसको फर्दर यूज कर सकते हो आगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब करते हैं डिस्कस वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है while taking inputs from the form।
अगर हमें कोई भी एक फॉर्म बनाना होता है तो हम जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाते हैं या किसी भी चीज़ का हम फॉर्म बनाते हैं, तो उस टाइम के लिए हमारे पास जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। जैसे आपने मान लीजिए यूज़र से लिया, नेम लिया, उसका एज ली, उसकी एड्रेस ली और मोबाइल नंबर लिया, और जो स्टूडेंट है कोई भी या फिर यूजर है उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, तो आपको ये जो वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट है, ये फंक्शन आपको बनाना होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, अगेन वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो। अब क्या करोगे आप, अब आपको 2 टाइम्स एस्ट्रिक साइन को पास करना होगा। द फर्स्ट asterisk sign, this sign will reference for the keys, and this asterisk sign will reference वैल्यू। its values, right? राइट। Okay, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, जैसे सपोज दैट मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नेम, नेम मैंने लिया और मेरे को क्या करना है यहाँ पर, काम करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं नेम। ठीक है, नेम हमने लिया और हमने कर दिया पास। ठीक है, इसके बाद हमने लिया एज, हमने पास कर दी यहाँ पर 25, कितनी भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, और सिंपल हमने क्या करा, ए प्रिंट करा दिया। पर जो भी हम पास कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम की एंड वैल्यू दोनों का पेयर बनाकर हम यहाँ पास कर रहे थे, तो सारी की सारी हमने कहाँ पर रिसीव कर ली, दिस वन। इज इट क्लियर? Suppose you want to print only the name. So how you indexing for dictionary? Just passing the key, right? So what is key here ये सिंगल for सिंगल name? कोट में होगा सर? जी सिंगल कोट में होगा ये? हाँ, सिंगल सिंगल कोट्स में होगा ये। ठीक है, सिंगल कोट्स में बनाते हैं। तो देखिए हमने जैसे एक्सेस करते थे, हमने अभी डिक्शनरी भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी, तो उसमें हमने क्या किया था, जैसे हम एक्सेस कर रहे थे वैल्यूज को विद इट्स कीज, राइट? तो हम यहाँ पर भी सेम क्या करेंगे, सर एक टेस्ट इंडेक्सिंग की कर तरह सकते। लीजिए ना, तो थोड़ा सा पढ़ना भी हो जाएगा। जी एक टेस्ट की तरह लीजिए ना, कभी टप्पल, कभी डिक्शनरी। ठीक ठीक, मैं उसको टेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो मैं अरेंज कर दूंगा। एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, टाइम ड्यूरेशन है जी, उसमें, तो वो टाइम आप उसके हिसाब से। बट एक एक चैप्टर होना चाहिए, जैसे वीकली एक ठीक चैप्टर ठीक होगा ठीक, तो हम नो पढ़ भी प्रॉब्लम। लेंगे। तो उस सॉफ्टवेयर में हम 10 या 20 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद वो क्या होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग वो आपको क्वेश्चंस देता रहेगा, डिस्प्ले होते रहेंगे, आपको टाइम के अकॉर्डिंग कर लेना होंगे। जैसे 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हो, अगर 1 मिनट आपका क्रॉस हो गया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वो डिस्प्ले हो जाएगा, चाहे इफ यू आंसर और नॉट, राइट? तो वन से 1 मिनट, तो वन थोड़ा मिनट इजी फॉर वन इजी रखिएगा। क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इजी, और टिपिकल तो कुछ होते ही नहीं है। प्रोग्रामिंग में जब हम बात करते हैं तो इजी तो कुछ होता ही एग्जाम नहीं में है। पढ़ा है। जी जी जी। हाँ, ये हो सकता है कि डिस्कस कर सकते हैं उसको। मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, असाइनमेंट्स हैं। अब आप लोग अगर करो तो बात बनती है। यहाँ पर अगर मैं सेंड भी करता रहा हूँ, क्लासेस भी आप पता नहीं किस तरीके से ले रहे हो, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही हैं। अब ये सारी टॉपिक्स हमें जब तक, कम से कम क्लास कितना भी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी हो, ठीक है, नो डाउट, ठीक, लेकिन हमें क्लास का भी ध्यान रखना है ना। तो जी जी, मेरा अब मेरा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अब मेरा सब क्लियर हो गया है, तो आई विल बी जॉइनिंग इट रेगुलरली। ठीक, तो ये तो मैं हमारे, चाहूंगी थोड़ा आप हफ्ते में ना एक क्लास अब मेरा एग्जाम रखिए, ताकि मैं ना ऐसे होगा थोड़ा सा पढ़ भी लूंगी। ठीक ठीक ठीक, मैं कर, ठीक, जी, कोई थैंक प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारे पास वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट, जो हमें पाइथन फंक्शन के अंदर देता है। ठीक है, बहुत सारे हमने फंक्शंस
हमारे पास पहले भी लैंग्वेजेस थी, हमारे पास इतने सारे फंक्शंस नहीं थे, ठीक है, बट यहाँ पर पाइथन ने फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस में काफी टाइप के फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये आपको देखना है कि आपके प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन आप बनाना चाहोगे, ठीक है, मतलब कौन से फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो फंक्शन आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। इज इट क्लियर? Is it clear? जी सर। Okay, जी now सर। जी सर। let's take some inputs from the user and print them by using variable length keyword argument, right? तो जितने भी हमने ये बनाए हैं फंक्शंस, इनको आप कुछ ना कुछ यूजर से इनपुट ले लीजिएगा और उसमें आप प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है, वो आप फर्दर यूज कर लीजिएगा। आपने जैसे एडिशन का प्रोग्राम बना लिया, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना लिया, टेबल प्रिंट करा ली, ठीक है, और आपने बहुत सारे लॉजिक्स, आपने थ्री स्टूडेंट्स की एज को इंसर्ट कराया और फिर यूजिंग एनी फंक्शन आपने उसको कंपेयर किया कि हु इज एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है, तो आपने इस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म किया, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा। अब हम क्या करते हैं, suppose I'm taking name from the user, right, by input function will return all the inputs in string because its return type is string. So I say that please enter your name. So I say, and age is integer. So I have to convert that string into integer. So I'll use integer function to convert string into integer. Now ask for entering the age. Please enter age. And बट सर आपने इनपुट को इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दिया? उसमें तो नहीं दिया था नेम में। हाँ, मैंने दिया स्क्वायर, ये इनपुट इधर में। इधर। हाँ, इसको अभी हटा दीजिएगा, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेम हो गया, एज हो गया। अब हमारे पास कुछ और भी हम ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट हमने वेट ले लिया, ठीक है, वेट ले लिया और इसको हमने ले लिया फ्लोट। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हम किसी भी टाइप का इनपुट ले सकते हैं और हम उसको फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास तीनों इनपुट्स आ गए, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। आप किसी भी टाइप का इनपुट ले सकते हैं, राइट। एंटर योर, राइट। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, नेम पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेम में मेरे को क्या करना होगा, नेम पास कर देना होगा, ठीक है, और एज में मेरे को क्या करना होगा, एज पास कर देना होगा, ठीक है, और वेट में मेरे को क्या करना होगा, वेट पास कर देना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? ये दिस इज जी। द की एंड दिस इज द वैल्यू विच वी आर वैल्यू। टेकिंग फ्रॉम यूजर्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो है की है और हम इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, तो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, ठीक है। नाउ execute this code, enter the name, suppose that I say N25 and right. So this is all about my output, right? Is it clear? Is it clear? यस सर। Okay, you can यस also सर। perform all arithmetic operations by using keyword argument, right? Suppose take जी। two जी। integer values or two floating values from user and calculate them. Okay, now
These types of function we have discussed today in the lecture. जी The first one is positional argument. Second one is keyword सर, positional एक argument. छोटा सा क्वेरी आपसे, वो लास्ट वाला जो है ना, उसमें आप थोड़ा सा वो वैल्यू निकालिए ना, प्रिंट में प्रिंट एज वगैरह कुछ देखते हैं क्या वो देता है। जी print age, yes, print age, right? If you want to print the age, so you have to pass all the values will be sent अगर to the खाली variable वेट a, या एज लेना है तो to the, yes, खाली वेट या एज मुझे मुझे okay, ये so में निकालना है। you have to write it in that way. All the values goes to the variable a, and we are doing indexing by its keys, right? So you want to print only the age and weight, right? So pass the key as the index position, right? And a weight. Suppose age 25, age, and वो उसके बाद ऐसे आएगा क्या, प्लीज एंटर योर नेम वगैरह? yes, see this. यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सारी की सारी वैल्यूज ए में साइन की कर दी जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एज चाहिए, तो आपने सिंपल क्या है, इंडेक्सिंग करनी है। और इंडेक्स हम डिक्शनरी में कैसे करते हैं, डिक्शनरी में हम इंडेक्स उसकी कीज के थ्रू करते हैं। तो देखिए जो भी हमें इनपुट मिलेगा, हमें एज चाहिए थी और वेट चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, वेरिएबल में सारी की सारी वैल्यूज हमें मिल रही हैं, तो हमने उसकी कीज, यानी कि जब वैल्यूज मिलेंगी तो उसकी साथ साथ की भी तो मिलेगी हमें, तो की के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, उसकी वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। सपोज यू वांट टू रीड द नेम टू बी प्रिंटेड, राइट? वी हैव टू पास only the name as a key. Okay, make sure that the spelling should be correct. This is the key which will pass here, right? Now you will get what? Okay, only the name of the student. जी। और सर ऊपर जो वो हमने किया कि नेम इक्वल टू इनपुट दिया, अब वो सब क्या हम कॉलिंग किए उसको? नहीं, वो कॉलिंग नहीं किए, वो सिंपल क्या कर रहा है, ये तो कुछ ऐसी बात नहीं है, इसमें तो सिर्फ हमने क्या किया, इनपुट ले रहे हैं और वैल्यू हम पास करते हैं ना। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, अगर हमें वैल्यू देनी होती है, हमें वैल्यू देनी होगी तो कैसे पास करते हैं। सपोज दैट अगर मुझे सारी वैल्यू देनी होगी तो मैं यही तो करूंगा, इसी तरीके से तो वैल्यू दूंगा, राइट? अगर मुझे की वैल्यू देनी होगी तो मैं इस तरीके से दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेम वेरिएबल में जो वैल्यू है फिर वो, हमने इनपुट देने की जरूरत क्या है, जब पहले हमने कभी इनपुट दिया नहीं था दूसरे वाले की तो मत दिए, तो कीवर्ड मैंने पोजिशनल। एक प्रोग्राम बनाया है कि टेक सम इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देम बाय यूजिंग वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट, नथिंग एल्स। जस्ट आप इनपुट्स ले रहे हो, आप मत लो इनपुट, हटाओ इन इनपुट्स को, ठीक है। और अब यहाँ पर पास कर दो जो भी आपको पास करना है। अब इसकी आपको वैल्यू पास करनी होगी यहाँ पर साथ साथ। ये तो मैंने एक बात दिखाई है आपको कि आप इनपुट भी ले सकते हो और आपने फर्दर, हमें एक्चुअल में डायनेमिक फंक्शन बनानी है ना, फंक्शन स्टैटिक थोड़ी बनानी है। जैसे मान लीजिए 72, तो नेम यही थोड़ी रहना है, एज यही थोड़ी रहनी है, वेट यही थोड़ी रहना है। तो जो भी हम इनपुट्स लेंगे वो डायनेमिक रहेगा। तो वो डायनेमिक ही मैंने प्रोग्राम बनाकर दिखा दिया। अगर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं तो हमें हर बार कॉल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट टाइम कॉल करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम जाएगा, सेकंड टाइम मैंने कॉल किया तो सेकंड टाइम जब जाएगा तो सेकंड टाइम भी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज करनी होगी वैल्यू। मेरे लिए काम बढ़ रहा है यहाँ पर, मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल इनपुट्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो हर बार में मुझे अलग अलग इनपुट्स देने होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ, एक मैंने दे दिया, सपोज एक मैंने ये दे दी, ठीक है, एक नेम दे दिया। अब मुझे क्या है, सेकंड टाइम कॉलिंग करूंगा तो मुझे यहाँ पर तरीके से पास करना होगा। मतलब आप जितने टाइम कॉल कर रहे हो उतने टाइम आपको
वैल्यूज देना है। यहाँ पर आपके पास ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये आप चेंज नहीं कर रहे थे, Okay. वो आप चेंज कर रहे थे, वो आप इनपुट ले रहे थे यूजर से, यहाँ पर यूजर से इनपुट नहीं ले रहे। Okay. इसे क्लियर ना? इनपुट फंक्शन नहीं, क्या वो करता है? इनपुट वाला पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया मेरा, मैं ठीक है, थोड़ा ठीक सा है, आई एम कंफ्यूज इन दैट। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। अभी हमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू हम पास कर रहे हैं ना, वैल्यू देख सर रहे सर हैं। एक क्वेरी है कि क्या पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, इस सब में भी हम इनपुट ले सकते हैं हाँ हाँ ले सकते हैं, मैंने अभी बताया या था ना। ओनली लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट में कर सकते हैं? टेक इनपुट्स for all functions, all types of functions, ऑल फंक्शन। whatever we ओके, have discussed सब here। में इनपुट ले सकते हैं। सब ठीक है। हमें ऐसा तो कोई फंक्शन ही नहीं होगा ना फिर जिसमें हम इनपुट्स ले ही नहीं सकते। अभी आपको मैं एक दिखाता हूँ पोजिशनल आर्गुमेंट करके, कि हमें टेक टू इंटीजर्स फ्रॉम यूजर एंड ऐड देम, राइट? क्लियर? अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, हमें इसको समझना है पहले कि हमें कीवर्ड, यहाँ पर ना कीज के साथ हमें वैल्यू लेनी है, और वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, स्टैटिकली पास कर रहे हैं, कैन नॉट बी चेंज while execution of the ओके program, right? अब ओके, एग्जीक्यूशन इनपुट टाइम देने से ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आप ये बोल रहे हैं? automatic, yes exactly, suppose that I am taking name only from the user, right? Suppose that, तो मैं क्या करा, ये मैंने ले लिया और एक, ठीक है, सिंपल इस तरीके से मैंने ली। अब मेरे को क्या करना है, ये मैं बाकी सारे ना पैरामीटर्स को हटा देता हूँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, अब इस वैल्यू भी लगा जो कि हम मेरे पास स्टैटिक नहीं है, अब डायनेमिक है, ठीक है। यहाँ पर मैं उस वेरिएबल का नाम, वो वेरिएबल पास कर दूंगा जो मुझे, जिसमें मैं इनपुट लेता हूँ, ठीक है, जस्ट आई डू दैट, राइट, नथिंग एल्स। और इसमें क्या होगा, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है और वैल्यू जा रही है इस की में, और यहाँ पर रेफरेंस हो रही है, मिल जा रही है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा इस प्रोग्राम को, तो दैट विल बी द डायनेमिक इन नेचर। ओके, इट विल चेंज, मतलब आपको फिर से पुट करना पड़ेगा और yes it will be हाँ changed, हाँ it will be changed, this is the dynamic function, ठीक है। now you can pass any of name here, right? suppose that यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ कोई, जैसे मैंने पास किया rock, so this is the dynamic value which we are taking from user while execution of the program। execution time पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, बट वो क्या था, एग्जीक्यूशन से पहले ही हमने वो क्या कर दी थी। अब यहाँ पर अगर मैं पास करता हूँ वैल्यू, ठीक है, तो दिस विल बी माय स्टैटिक वैल्यू, दिस इज द स्टैटिक वैल्यू, एबीसी, दिस इज द स्टैटिक वैल्यू। अब यहाँ पर मैं इनपुट नहीं ले सकता, और ना ही ये एग्जीक्यूशन टाइम पर क्या होगी, चेंज होगी। अब मुझे जो भी मिलेगी वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन सेम वैल्यू मिलती है, क्योंकि मैंने पहले वो स्टैटिकली वहां पर स्टोर करा दी ना, यहाँ पर ओके ओके, दैट्स व्हाई इट्स वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट, क्योंकि वो शायद बहुत लंबा अगर होगा तो सबका एक एक करके तो पुट नहीं कर सकते। suppose that I am taking 50 inputs from user, then how is it possible जी to जी take, जी जी, हाँ, अंडरस्टैंड, right? तो यहाँ पर ओके ये चीज हो जाती है कि अगर मल्टीपल यूजर्स हैं, चलिए 10 यूजर्स हैं, 20 यूजर्स हैं, तब भी हमारे पास कुछ डेटा लिमिटेड होगा, लिमिटेड है यहाँ पर डेटा, बट when we work on a big amount of data, हमारे पास लार्ज ठीक है अमाउंट ऑफ डेटा है, तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए we are having 10,000 records or 50,000 records, तो कैसे ठीक करेंगे है। ये सारी, है ना, तब कहानी वहां से। बट सर 50,000 रिकॉर्ड्स में एक नाम कैसे, हमें खुद को भी नहीं याद होगा तो हम कैसे उसका डेटा डालते जाएंगे? खुद को भी याद नहीं हुआ, नहीं, ये तो यूजर करेगा ना, यूजर इनपुट करेगा, यूजर से हम ले रहे हैं, हम थोड़ी दे रहे हैं इसको, ओके, तो हमने तो यूजर से जैसे लिया है। हमारे पास 50, जैसे आपने नाम और वेट पुट भाई किया, मुझे मेरा वैसे नाम याद है, मान के चलिए मेरे पास 50 लोगों का मैंने उसमें डाल दिया, हाँ, तो फिर मैं उसको उनका प्रिंट कैसे तो प्रिंट आप करा लोगे, नेम का? कि आपको क्या करना होगा, आपको
सारी की सारी एंट्रीज लेनी नहीं है, आप कॉलिंग करते जाओगे बस। आपको ये सारे लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार पैरामीटर्स को पास करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको कॉल करनी होगी। सपोज दैट मुझे 15 नेम्स लेने हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने क्या करा, देखिए कितना मेरा शॉर्ट हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक नेम लिया और मैंने यहाँ पर मुझे 50 नेम्स लेने, या मान लीजिए मैंने 5 नेम लेने हैं, तो मैंने क्या करा, ये करा। अब सिर्फ मुझे काम मेरा इतना रह जाएगा कि मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, ठीक है, सेकेंड टाइम कॉल किया, थर्ड टाइम कॉल किया, फोर्थ टाइम कॉल किया, सिर्फ कॉलिंग कर रहा हूँ। Now my task is really to call the function, right? Suppose this value is for the first calling, which will pass from here, right? Suppose यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ मैंने दिया हैप्पी, ठीक है, या तो देखिए मेरे पास क्या है, सारी की सारी वैल्यूज आ गई। जितनी बार मैं इसको कॉल करूंगा, आप नेम में अब यहाँ पर चेंज करते रहो और यहाँ पर नेम 1 लेते रहो, नेम 1 ले लो, नेम 1 ले लो यहाँ पर, ठीक है, नेम 1, ठीक, यहाँ ले लो नेम 1, सॉरी, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4 एंड नेम 5। अब देखो यहाँ पर क्या कर दो, नेम 1 कर दो, और सिंपल कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करते रहना है। इस तरीके से भी आप नेम ले सकते हो। 2 3, अब आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, सीक्वेंस। Is it clear? Is it clear to you? नहीं सर, एक चीज समझ नहीं आ रहा, जैसे आपकी 50 स्टूडेंट्स हैं और आप 50 स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं, तो इसमें आप तो एक एक करके सबका नाम भी डालते जा रहे हैं, तो आपको कैसे याद रहेगा 50 स्टूडेंट्स का नाम, उनका कब आप एडमिशन किए थे? नहीं, वो तो भाई जैसे ये हम क्या करते हैं जनरली, हम देखिए क्योंकि सी प्लीज एंटर नेम ही इज आस्किंग ना, जी जी, कंप्यूटर इज आस्किंग, तो वो तो दैट इज माय आपको कंफ्यूजन। ठीक है। देखिए मान लीजिए हमने कोई भी एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, उस पर हमें कोई भी फॉर्म को सबमिट करना होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर डिफरेंट लोकेशन से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो वो अपना फिल करेंगे, हम अपना फिल करेंगे, इस तरीके से हमारा डेटाबेस क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। हमें याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है, अगर आपको जो चीज यूजर से लेनी है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको अगर 10 चीजें आपको लेनी है तो आपको 5 नहीं नहीं, 20। मेरा बस सिंपल सा ये है क्वेरी आपसे, जैसे आपके 10 स्टूडेंट्स हैं और आपने 10 स्टूडेंट का डेटा इसमें संभाल के रखा, नेम 1 नेम 2 करके आपने रख दिया, तो आपको उसमें से 4 स्टूडेंट का अभी डिटेल्स चाहिए, तो हाउ विल यू गेट? 4 स्टूडेंट्स की चाहिए ना, तो आप 4 टाइम कॉल करा लो, अब 4 टाइम कॉल करा लो, अब जरूरत नहीं है कि आप उसको 5 टाइम कॉल कराओ, ठीक है, आप 4 टाइम कॉल करा लो। आपके मैं एक्चुअल क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने पहले तो नेम दिया, प्लीज एंटर नेम, देन आपने कॉलिंग भी की, नेम मतलब वैल्यू दिया, ठीक है, तो उसके बाद अगेन वो उसने देन मशीन आस्क्ड यू दैट प्लीज एंटर योर नेम, एंटर नेम, फिर आपने दिया मोइन पूनम वगैरह दिया, तो इसमें हम जो डिटेल्स ऑलरेडी मैंने रख रखा है, मतलब आपने अगर मतलब मान के चलिए आपके स्टूडेंट्स हैं और आपके स्टूडेंट का डिटेल आपने ऑलरेडी रख रखा है, आपको कैसे याद होगा कि आप वो पूनम का ही डिटेल लेना है? तो वो तो हम सर्च कराएंगे ना, हम सर्च कराएंगे बाय नेम, बाय आईडीज, बाय ये सारी चीजों से कराएंगे हम, जो भी चीज हमें चाहिए होगी
ये तो हम फर्दर अच्छा, जैसे हमने पूनम डाला तो पूनम का सारा डिटेल मतलब यहाँ पे हाँ तो हाँ सिर्फ नाम हाँ ही आ रहा है। नहीं, हाउ विल वी गेट द डिटेल्स, दैट आई एम तो आस्किंग यू। डिटेल्स जब हम यहाँ पर हमने नेम लिया है ना, तो इसलिए हमें नेम शो हो रहा है। अभी अगर सारी चीजें हमें चाहिए होती है तो सारी चीजें हमें सिंपल, आप ये चीज हटा दो यहाँ से, तो जितनी भी आप पैरामीटर पास करोगे, जैसे देखिए नेम आपने पास किया, मैं सिंपल यहाँ पर नेम ले रहा हूँ। और मैंने इससे पहले क्या किया था, नेम मैंने ले लिया था, नेम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज दैट मैंने क्या किया, ये मेरा नेम आ गया रॉक। अब मुझे चाहिए एज, ठीक है, तो मेरे को एज लेना है, तो एज भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। कौन रेफरेंस कर रहा है इसको, इनका काम है ये दोनों एस्ट्रिक जो साइन है जो हमने पुट किए हैं इन वेरिएबल, इस वेरिएबल को ये रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो की हमें जा रही है फर्स्ट की, फर्स्ट एस्ट्रिक में, और जो यहाँ पर सेकंड की जा रही है वो सेकंड एस्ट्रिक में जा रही है, ठीक है। तो मतलब दोनों ये साइन में हमारे पास करस्पॉन्डिंग जा रही है। तो हमें यहाँ पर जो रेफरेंस कंप्लीट जो मिल रही है हमें वैल्यू, यानी कि कंप्लीट जो डेटा मिल रहा है वो ए में मिल रहा है। तो आप ए को प्रिंट करा लो, जस्ट यू विल गेट कंप्लीट डिटेल, राइट। और अगर आप इंडेक्स पोजीशन से चाहते हो तो इंडेक्स किस तरीके से करते हो वो यहाँ पर करोगे। आपका जो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर मुझे किसी नेम को सर्च करना है या किसी भी एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे, राइट, यही है ना क्वेश्चन। जी तो ये जी जी हमें जी। सर्चिंग के लिए नहीं कर रहे हैं हम यहाँ जैसे पर। मैंने आपने 10 बच्चों का आपने डिटेल रखा जिसमें रॉक और उसका एज रखा 25। जी जी। तो आप अगर 2 साल के बाद अब रॉक का एज वगैरह या डिटेल चाहते हैं तो आप उसको तो नेम। वो फर्दर प्रोग्राम में यूज करेंगे ना, जैसे फर्दर प्रोग्राम में आगे हमारा कोड होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वी आर टेकिंग इनपुट्स और कुछ नहीं ले रहे हैं। ओके मान लीजिए यहाँ पर ओके। मुझे दो चीजें चाहिए, नेम एंड एज। हमें 10 बच्चों की चाहिए, 10 बच्चों की जो भी चीज आएगी, नेम आएंगे, उसकी एजेस भी आएंगी। तो जो नेम्स और एजेस होंगे वो कहीं ना कहीं हम स्टोर कराएंगे ना, वो जो भी हमारा डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, तो वहां से हमारा फर्दर दूसरी क्वेरी होगी। वो फर्दर हमारी जो दूसरी क्वेरी है सर्चिंग की क्वेरी लगाएंगे, सर्चिंग करेंगे हम वहाँ पर, जैसे हम सर्च करते नहीं थे यहाँ पर। जैसे हमने कोई अगर डिक्शनरी को, मैं हमने बताया आपको कि अगर कोई भी पर्टिकुलर की को सर्च करना सर है कि प्रिंट प्रिंट एज करिए, क्या आता है? प्रिंट आएगा एज, 25? नहीं नहीं, प्रिंट एज करेंगे तो देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से, आए तो। हाँ, ये इस तरीके से आपका कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं आएगा, ठीक है। वो एक पार्टिकुलर क्या आएगा, बट यहाँ पर अगर आप ए कर रहे हैं, ए, ठीक है ना, ए, तो ए में आपका कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पर, मतलब नेम भी आ रहा है, जितने भी, क्योंकि ये सारे ओके के ओके सारे जितने भी कीज रेफरेंस हो रही है वो ओके। इसको रेफरेंस हो नहीं रही है नहीं, यहाँ। मैं इसीलिए सर कंफ्यूज हुई, सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं इसीलिए सर कंफ्यूज हुई क्योंकि जो हम कर रहे थे ना उसमें पहले जो लिस्ट हम दे रहे थे, वो क्या वो दे रहे थे, वो इनपुट जो दे रहे थे, जी जी। उसके बाद वो आप पूछे जा रहा था कि व्हाट इज नेम एज वगैरह पूछे जा रहा था। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। अच्छा अच्छा, वो तो यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिक दे ही रहा है आंसर। जी जी जी, वो सिंपल हमारा डायनेमिक है और कुछ नहीं है। हमें मतलब डायनेमिक हमने एक इनपुट ले लिया है, बाकी फर्दर जो काम करेंगे आप, जो सर्चिंग का है, ये सारी चीजें हम डेटाबेस में से करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम में से नहीं करते। प्रोग्राम तो एक लॉजिक लिखता है, हम वहाँ पर लॉजिक बना रहे हैं। ओके तो यहाँ पर क्या लॉजिक बना रहे ओके। हैं हमारे, देखिए क्वेरी क्या है, ये क्या किस सिचुएशन में, देखिए मान लीजिए हमसे बोला गया कि दो नंबर को आप ऐड कराओ, ठीक है, दो नंबर्स को जी ऐड कराना है। क्वेश्चन में क्या है, टू नंबर्स, उसने पहले ही कह दिया कि टू नंबर्स को ऐड कराओ। अब वहां पर हमें पता है कि टू नंबर्स है हमारे पास, दो ही नंबर को ऐड कराना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमें पता है। अब मैं बोल दूं आपको कि नंबर्स को ऐड कराओ, तो यू नो कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं सर, यहाँ पे एग्जैक्टली, एक ही वो नंबर है। नहीं, नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना कि टू नंबर्स को ऐड कराओ। यहाँ मैं कह रहा हूँ नंबर, नंबर्स को ऐड कराओ, तो अब नंबर नंबर भी हो कहाँ सकता से है, आएंगे? नंबर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टेकिंग इनपुट्स एंड ओके लॉजिक हम अच्छा। आगे लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे मेरा बताने का मतलब ये है कि जब मतलब एक फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन हम क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का पार्ट है आपका। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करना है, मुझे चार जगह 4 बार नंबर को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब वो 4 बार मैं 4 जगह लॉजिक अलग अलग लिखूंगा,
तो इट विल इंक्रीज माय लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो लेंथ है हमारी लाइन प्रोग्राम की, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। मान ली 4 लाइंस मैंने लिखी, 4 लाइंस मैंने फर्स्ट लॉजिक को लिखी, सेकंड सेम लॉजिक मुझे इम्प्लीमेंट करना है मेरे प्रोग्राम में थोड़ी आगे चलकर, वो 4 लाइनें फिर मुझे दोबारा से लिखनी पड़ेंगी, तो कितनी हुई टोटल 8। फिर ऐसे ही मुझे 3-4 बार लिखना पड़ेगा, तो वो मेरे पास इंक्रीज होती है। मैं कुछ ऐसा सिस्टम करूँ कि मैंने एक ही बार वो लॉजिक लिखना है और उसको रीयूजेबिलिटी दे, मतलब रीयूज कर सकें हम उसको। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, अब मुझे सिंपल क्या काम करना है, मैं चाहे ऐड कराऊं चाहे कुछ भी कराऊं, यहाँ पर मुझे सिंपल बस कॉलिंग करनी है फंक्शन। 10 बार भी अगर आएगा ना, तो लॉजिक मेरे पास लिखा हुआ है, बट मैं जब कॉल करूंगा तभी वो डेफिनेशन कॉल की जाएगी, वो फंक्शन कॉल की जाएगा। अब मुझे बार बार लॉजिक पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ओके समझ आ रहा है ना, तो ये ओके चीज सर। है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक लिखा कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके सिर्फ एजेस चाहिए, ठीक है, या फिर एज चाहिए, या किसी रिकॉर्ड में पर्टिकुलर मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज चाहिए। मैं बार बार क्या उस लॉजिक को लिखते जाऊंगा, नेम कराऊंगा, सर्च एज कराऊंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, सिंपल कॉलिंग पास कर दूंगा, ठीक है, बाकी मेरा सारा काम यहाँ से होता जाएगा। मैं नेम पास कर दिया, ठीक है, और एज पास कर दिया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी सर, ओके, थैंक यू। आज के लिए ये थैंक यू। जो मेरे फंक्शंस थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, और प्लीज ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लासेस। हाँ हाँ, I'll be regular sir, I'll be there, but 3 o'clock is my fine time sir. ठीक है, My proper, I'll be there, I'll be available. ठीक, Yes, क्योंकि यहाँ पर thank प्रॉब्लम you ये sir, रहती है ना thank कि you very अगर much. अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज मैं अभी पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।